Institute will be taking family law for the first time from this year onwards. Why? Because in the past years, none of us ever taught family law. It was only in the 2020's DULLB exam that a certain, I would say about 2 to 3 questions of family law popped up in the exam, and to everyone's surprise, they had asked something as tough as family law. Now, family law is one of those areas of law wherein I, now who has graduated and has become an advocate now, not like I have temporary enrollment for now. So, would like to have my practice in. It's that area of law. It's very interesting. And for all those of you, today's class will be about basics of family law because that's what, after much research, I have collected all of these sections. Bare Act. In the Act, once you will formally enter law schools, you will obviously read through all these sections again. These are the basic sections. Now, I've done my research thoroughly. Thoroughly in what sense? I've spoken to the admission committee at law faculty. I have not been able to get in touch with all the teachers in the admission committee, but those who are in from my center, I've spoken with them. I've spoken with a bunch of them to ask why was family law asked last year, and what kind of questions do we expect a level of higher you know order thinking questions from family law this year, a little tougher questions from this area of law this year, or do we expect no questions from this law because last year was just like an experiment and it did not turn out well, or the feedback that the admission committee got. Based on that, will the faculty is it planning to repeat these questions or similar type of questions, or are they planning to go back to the traditional areas of law which still remains to be contract, torts and IPC? So I will tell you what frankly I was told, and I've also spoken with a few institutes tutors that I am in touch with, and especially I've spoken with institutes from outside Delhi because they will give me more genuine information because of exchange of students, right? Some students who come to us who are not from Delhi and who want to take in-person classes, we give those students to them. So because of this, we are in each other's good books. So obviously, we share genuine information with each other. So what feedback have I received? That they will be asking basic questions, right? Once a law or a certain area of law is introduced in the DULLB exam, it is of high probability that that area of law will be asked again. Now, to say what kind of questions will be asked from family law, because obviously family law has been asked once, so I was told that basic questions will be asked. So basics of family law must be done. Now, I had taken out my books, I have done all my research, and I have gathered these few sections. With these few sections, after today's class, I will be also sharing a link of an online article that I found to be good enough for Muslim law. Now, why have I not included Muslim law in the PDF that I have sent you? Alright, so I haven't included Muslim law because Muslim laws does not have a marriage act. It only has a divorce act. Marriage is there in Quran, right? And it has a few terms in the Quran's language that we need to understand. Now, if I would have given those terms, then that would have been unfair because those are not legal terms. Those are religious terms. So I thought nothing should go from my side, and an online source, which is an independent source, should be given to you all, which will be more or less comprehensive for introducing Muslim law to you. It's not like that I'm not going to discuss Muslim law. I am going to discuss all the basics of Muslim law in today's class only after discussing Hindu law once. Thereafter, there are a few things that one needs to understand about Muslim law that is not there written in the law, but I'll tell you why is it not written in the law, but then why do you have to study? I'll explain that portion also. Today's class is going to be a little interesting, and you will have to sit tight because I might extend this class to 1.5 hours or 1 hour and 45 minutes. All right, so I'm just beforehand introducing you that everything from Hindu law is there in the PDF. If there is anything extra also that I after the class I feel after taking your doubts I feel no, this area should be touched upon a little more, I will definitely give you notes for that area. Apart from it, all basics are definitely covered. In Muslim law, a few things which are not written in law but are important, I will share a link for it. So you may go through that, and if there are any doubts, you may always ask me, and I will be taking regular classes from now on because I have to finish TOTS and IPC in a few batches. Apart from it, I think most of my batches have already finished the 3
most important traditional laws. I cannot emphasize more on how important IPC contract and torts is. Family law, IPR that we will be doing in a few days from today, these are extra laws, extra portions of law. If at a point you think I cannot retain all of it, just remember the concept and go for the exam. No point stressing over family law or IPR or these extra laws. These are extra pointers of your syllabus. ये आपको एक दो क्वेश्चन सही करवा सकते हैं, चलो 3 करवा लेंगे मैक्सिमम, पर जो बेसिक्स हैं, जो स्ट्रेंथ है आपके पेपर का, वो उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, लीगल रीजनिंग के भी हो या कहीं और के भी हो. लीगल एप्टीट्यूड में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आईपीसी, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के ही होंगे. और एक और चीज आज मैं क्लियर कर दूं लॉ के बारे में इन जनरल, ठीक है. एडमिशन कमेटी ने मुझे बोला कि हर साल हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालने वाले हैं लॉ के जो कोई स्टूडेंट आंसर ना कर पाए. अब क्यों डालते हैं समझो, सो दैट कोई भी फुल स्कोर ना करे. फुल स्कोर करना एग्जाम का होता है कि एग्जाम का लेवल सही नहीं था, एग्जाम की रेपुटेशन कम होती है अगर कोई फुल स्कोर करता है. तो ये एडमिशन कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता, एस्पिरेंट्स का नहीं हो सकता, हम ट्यूटर्स का नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता. बट उनका है कि एग्जाम की रेपुटेशन होनी चाहिए कि एग्जाम टफ है. और एग्जाम टफ कैसे बनेगा, जब आप हार्डकोर लॉ क्वेश्चंस पूछोगे नॉन लॉयर्स को. तो इस साल भी पूरा लीगल सेक्शन आपको आता हो ऐसा नहीं होगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे लॉस के होंगे जो आप नहीं पढ़ के जाओगे, बट उन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है. रिमेंबर कि आपको नहीं आते, वो सामने वाले को भी नहीं आते, आपके पूरे एस्पिरेंट्स के लॉट को वो नहीं आते. लास्ट ईयर मुतावली पे एक क्वेश्चन था, वो अनलेस कोई मुस्लिम हो और मुतावली का कॉन्सेप्ट उन्हें सुन रखा हो शादियों में या एसेट्रा एसेट्रा कहीं और जहाँ भी उनके रिलीजियस पर्पसेस में मुतावली का रेफरेंस है. अपार्ट फ्रॉम इट मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं जानते थे कि मुतावली क्या है. जिनसे मैंने बात करी कि was there an advantage if this question had come to you, so they said no, even we don't know what is this, right? So कुछ questions हर साल लॉ के ऐसे आएंगे, वो पेपर का लेवल उठाने के लिए होते हैं और वो कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वस. So one point all of you will have to keep in mind that you are not supposed to get 100 on 100 in this exam. If you get it, that's a breakthrough. What you're supposed to get is over 60 right. Your aim is to not get every question right, but your aim is to get the majority of them right. So even if you see a few questions that you have no idea about, do not get nervous in the exam. Always remember, if there are more technical questions in the exam, if there are going to be if there is going to be a higher number of technical questions or hardcore law questions in exam, the cutoff will go down. Why? Because every aspirant is like you. Some might be UPSC aspirants, they also don't study law that much. Some might be some other government exams aspirants, they also don't study law that much. Only lawyers would know such deep sections, right? Someone who has read the law. So you don't have to be scared. These questions are there to stress you out, to make you nervous, to lose your confidence in the exam. But this is exactly what you should not let it happen, because others will also not know कि उसका आंसर क्या है. ठीक है? Okay. Now, quickly moving to family law. Now, before we start with family law, let me explain you what is family law. Now, surprisingly, all of you have done Article 13. Can I get a yes in the chat box so that I also know you are not sleeping after a long 11-minute monologue? Has everyone studied Article 13? Good. Any doubts about Article 13 of the Constitution of India? Any doubts? Ask me before I ask you all a question. Quickly. So if there are no doubts about Article 13, anyone can switch on their audio right now and in fraction of second tell me what is Article 13. Severability या severe करना लॉ को तो डॉक्ट्रिन है अंडर आर्टिकल 13. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, उसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी है, सिवियर करना,
लॉ को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करना. व्हाट इज आर्टिकल 13? एनीवन? Quickly. Ma'am, any laws which are inconstant or they go against the fundamental rights are nullified. Correct. Very good. Yes. So, Article 13 talks about inconsistency. What does that mean? That if any sort of law which is there in force in India, if it is going against or if it is inconsistent with the fundamental rights, then in that case, those laws are going to be void laws, or we will consider those laws to be null and void. Null and void meaning कि वो laws exist ही नहीं करते. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कोई लॉ है कि सारी औरतें घर पे रहेंगी और सारे आदमी बाहर काम पर जाएंगे, ये इंडिया में एक लॉ आ जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर एक्ट 2021. So immediately it will get challenged in the Supreme Court. On what grounds? On violation of Article 14. On violation of Article 14 equality. यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का फैमिली लॉ समझ नहीं आएगा, सिर्फ डाउट्स हैं. ठीक है. आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, that everybody is equal before the law and law has to be equal for everybody, right? So how can you tell women to stay at home and men to go out? Why can't men stay at home and why can't women go out? Now this law will be challenged on basis of Article 14, and thanks to Article 13, the Supreme Court in no time will struck down this law, making it null and void. Alright. Manjula, I haven't explained much. I haven't touched the point yet. Just listen from now on. The point is that all family laws in India are inconsistent with Article 13. So now, the first question that should come to your mind, if all family laws are inconsistent with fundamental rights, they are not consistent with fundamental rights, meaning for example जैसे मैंने बोला कि औरतें घर पे रहेंगी, आदमी बाहर पे जाएंगे, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है. उसी तरह हम जो जो सेक्शन आज पढ़ेंगे, वैसे हम वो वाले सेक्शंस आज टच नहीं करेंगे, बट इन जनरल मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन का वो समझाऊंगी कि कैसे वो सेक्शन यूज होता है हमारी सोसाइटी में, सो दैट आपको पता चले कि हर लॉ अनफेयर है. और अनफेयर किसकी तरफ है? वुमन की तरफ. और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ये मैम तो फेमिनिस्ट है, ये तो फेमिनाजी है. जब आप ये सुनोगे तो आप समझोगे कि सारा फैमिली लॉ आर्टिकल 14 का वायलेशन है, पर फिर भी वो लॉ है, हम सब पे एप्लीकेबल है. हम जितने यहाँ बैठे हैं, कौन कौन है? अमृता, अविनेश, वर्षा, गुणेश, हर्ष, जानवी, मंजुला, महक, राहुल, सलोनी, वैभव. वर्षा, are you a Hindu or Christian by any chance? Barsha, if you can hear me. You're a Hindu. Okay. So I was expecting Uwais to turn up in this class because I would have taken his help in understanding and explaining Muslim law to you. But unfortunately, all of us are Hindus in this class. So you all will realize that Hindu law is absolutely unfair to women. At times unfair to everyone, even to boys, even to men. And everything is inconsistent with one or the other fundamental right. So now what happens? What happens basically is ये सब तो अब नलिफाई हो जाने चाहिए आर्टिकल 13 के हिसाब से, पर ये सब लॉ है, हम सब सारे हिंदू है, हम सब पे हिंदू लॉ लगता है, जो भी आज हम पढ़ेंगे सब पे लगता है, राइट? तो जब हम सब पे लॉ लगता है तो फिर अभी तक नलिफाई क्यों नहीं हुए? फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है. ट्रिपल तलाक वाला केस तो सबने सुना होगा. आज हम ट्रिपल तलाक का एक्ट भी करने वाले हैं, जो ट्रिपल तलाक का इतना फेमस शायरा बानू जजमेंट आया था, सबने पढ़ा होगा. ट्रिपल तलाक बैन करा गया, अभी रिसेंटली करा गया, जजमेंट नहीं भी पढ़ी, केस नहीं भी पढ़ा, कोई बात नहीं, सुना होगा. ट्रिपल तलाक बहुत इशू उठा था, करेक्ट. उसके बाद 2019 में उसका एक्ट भी ले आई मोदी गवर्नमेंट. तो वो अगर आप ट्रिपल तलाक भी देखो, वो भी आर्टिकल 14 की वायलेशन थी. अब ये सब जब फंडामेंटल राइट्स का, फाइनली Uwais is here. Hi Uwais, I was missing you in this class because we're doing family law and I definitely wanted your help today. All right, welcome to the class. Okay, now
So as I was saying, सारे फैमिली लॉज, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, क्रिश्चियन लॉ हो, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में बने हुए हैं. अब आर्टिकल 13 के हिसाब से तो इनको नल हो जाना चाहिए था, तो ये हम सब पे कैसे एनफोर्सिबल है? अब आज एक बात समझ लो, और आज के बाद ये मुझसे सवाल मत पूछना कि ये अनफेयर क्यों है. ये मैं इसीलिए क्लास के इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, और महक स्पेशली आप मत बोलना ये अनफेयर है. क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉज इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया, personal laws as in family laws, I will be interchangeably using these terms, and you should also keep this in your head that personal laws are family law. Personal है ना, family personal affair है, correct? Personal affair था कि my mother was admitted in hospital for 22 days and that is why I was not able to take your class. This was a personal affair, correct? So family is personal, तो हम इनको personal laws भी बुलाते हैं और family laws भी बुलाते हैं. फैमिली लॉज और पर्सनल लॉज में इंटरचेंजेबली यूज करूंगी तो कंफ्यूज मत होना. तो हमारे कंट्री में क्या लॉ है? पर्सनल लॉज आर नॉट कंसिडर्ड लॉज. हम इनको लॉ नहीं मानते. हम इनको क्या मानते हैं? नोबडी नोज. और क्योंकि अगर हम इन्हें लॉ मानेंगे तो इनको हमें आर्टिकल सारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से सही सही करना पड़ेगा. वो हमारे रिलीजन्स अलाउ नहीं करते हैं. तो फिर इसीलिए हम लोगों ने एक नया स्कीम निकाल लिया है कि पर्सनल लॉज आर नॉट लॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13. Why are they not laws according to Article 13? Because if they were considered laws according to Article 13, then all of these personal laws, Hindu Marriage Act, Muslim Divorce Act, etc., Succession Act, all of them will be considered null and void, because each act, and to an extent I can say 50% of the sections in these act, or each of the 50% of the sections, they violate some or the other fundamental right of ours, of each one of us. And you from your adult life onwards will see this differentiation, this unfairness of personal laws being applied in your own lives, because as I said, everybody has a family. All of you will get married one day. All of you will have to go through, let's say, death of your parents one day. Sorry or not so sorry, but this is the the truth of life. And सब फैमिली लॉज के केसेस में फंसोगे. कम मैक्सिमम लोग आज की डेट में अर्बन सिटीज में फैमिली लॉज के केसेस में फंस रहे हैं, राइट? सो वी कैन नॉट क्वेश्चन फैमिली लॉज. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम इनको फंडामेंटल लॉज के हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से सही क्यों नहीं कर लेते, फेयर क्यों नहीं बना देते, इक्वालिटी क्यों नहीं ले आते इन लॉज में, हम इनको कंसिस्टेंट क्यों नहीं बना लेते फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से. अभी तक तो आई फील इतने महीनों से लॉ पढ़ रहे हो, ये तो सबको पता है ना कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे आज की डेट में शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बचा हुआ है. सब ये मानते हैं. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, प्रेजेंट डे मोदी गवर्नमेंट, इतनी एलिगेशंस लगती है, हर गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगती हैं. फंडामेंटल राइट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है हमारे पास. डज एवरीवन अग्री बाय नाउ? इतना लॉ पढ़ लिया. अगर आपको कोई जेल में भी ज्यादा रखता है ना, अगर जेल में भी ज्यादा रखता है तो फिर वो भी आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 में चैलेंजेबल है. तो आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स हर जगह हमारे प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं. करेक्ट, सब अग्री करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम अपने पर्सनल लॉज को थोड़ा उठा क्यों नहीं लेते, थोड़ा उनको इम्प्रूव क्यों नहीं कर लेते, अमेंड क्यों नहीं कर लेते, चेंज क्यों नहीं कर लेते, कि हम उनको कंसिस्टेंट बना लें इक्वालिटी के, कंसिस्टेंट बना लें फ्रीडम्स के, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, इक्वालिटी के, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के. क्यों हम इनको नहीं कर लेते ठीक? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ सोर्स. सोर्स यानी कहाँ से आ रहे हैं ये फैमिली लॉज, ये पर्सनल लॉज? ये लॉज आ रहे हैं रिलीजन से. These things, these laws are not made by our constitutional makers, or are not made by parliamentarians or by the legislation. They are made because of what our religion holds in it. Muslim law is entirely based on what Quran preaches, and Hindu law is based on multiple sources. Please write down, to name a few. Shruti and Smriti. Shruti and Smriti का मतलब मुझे कौन बताएगा? So many Hindus in class right now. What is the meaning of Shruti and Smriti, and why are they the sources of Hindu law? Very important source of Hindu law. After Manusmriti, वैसे मनुस्मृति भी स्मृति ही है एक तरीके का, तो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है वेदास. ठीक है? Smriti is not the truth. No, no, no. Shruti and Smriti are sources of Hindu law. इसका मतलब है श्रुति.
सुनकर हमारे पूर्वजों ने हमें बताया ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा ट्रेडिशन कस्टम या रिलीजियस चीज है, ये हमारी फॉलोइंग है। एग्जैक्टली एंड स्मृति मीन्स मेमोरी। जो हमारे पूर्वजों को याद रहा उनके पूर्वजों से, वो उनने हमें बता दिया कि अच्छा हमारी शादी में ऐसे 7 फेरे होते हैं, हमारी शादी में ऐसे कन्यादान होता है, हमारी शादी में ऐसे फेरे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है। ये सब स्मृति और श्रुति है जो हमारे पूर्वजों ने बता दिया कि हिंदू रिलीजन का पार्ट है, ये हमारे ट्रेडिशन है, कस्टम है। तो अब क्या सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के या किसी भी पर्सनल लॉ के? कस्टम्स, ट्रेडिशंस, यूजेज इन व्हाट सेंस? सती भी यूज होता था, वो भी लॉ होना चाहिए था। बैन क्यों कर दिया? वो बैन इसलिए कर दिया, ट्रिपल तलाक क्यों बैन कर दिया? पहले राजा राम मोहन रॉय ने बैन करवाया सती, और अभी ट्रिपल तलाक रिसेंटली बैन हुआ। क्यों? ये सब भी तो हमारे रिलीजन है, तो फिर क्यों हम करें? तो यही डिबेट था ट्रिपल तलाक की। जिस दिन जजमेंट पढ़ोगे पूरा डिबेट ही यही था कि ट्रिपल तलाक इज फ्लोइंग फ्रॉम द रिलीजन एंड हाउ कैन यू क्वेश्चन रिलीजन? Religion is the source of all your family laws. So you cannot change religion. You are nobody. Government of India, Constitution of India is no one to change religion, is no one to change your holy books. So if Quran says triple talaq is valid, you better should believe that it is valid. And this was the whole point of challenging. अब Supreme Court judges क्या करें? उसको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन तुम्हें तो रख नहीं सकते। सो ट्रिपल तलाक डज नॉट वायलेट any fundamental right because according to Article 13 it is not a law only. So if something is not law, how will it violate Article 14 or any other article or any fundamental right for that matter? So हाँ, so ऐसे ओवेस वो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमारे रिलीजन में नहीं था या था, और डेफिनेटली जैसे ये भी कहते हैं कि हिंदुइज्म में वो प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं। तो ये सारी डिबेट की बातें हैं। एट प्रेजेंट हमने क्या देखा कि हमारे लॉ में ना ट्रिपल तलाक है। हमारे मुस्लिम एक्ट में, मुस्लिम मैरिज का एक्ट नहीं है, पर हमारे मुस्लिम मैरिज गाइडलाइंस में ट्रिपल तलाक था। अलग अलग तरह के तलाक हैं। कुछ तलाक मुस्लिम्स में क्या होता है, कुछ तलाक सिर्फ हस्बैंड ले सकते हैं, कुछ तलाक सिर्फ वाइफ ले सकती है। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, कि भाई दोनों पति पत्नी एक दूसरे से परेशान है, सर फोड़ लेंगे, एक दूसरे के साथ एक भी दिन और रहे, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कहते हैं इसे। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब पति भी परेशान है, पत्नी भी परेशान है, भाई छोड़ दो, शादी तोड़ दो। वो ना हिंदू लॉ में रिकॉग्नाइज था, ना मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज था। अब हिंदू लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, मुस्लिम लॉ में अभी भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है, हिंदू लॉ ने भी अभी थोड़े साल पहले अमेंडमेंट लाके उसको रिकॉग्नाइज किया। आज हम वो अमेंडमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा, नहीं तो हम कल की क्लास भी डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, मैं वेडनेसडे तक कंटिन्यूस क्लासेस लूंगी क्योंकि मेरा एम है 3 क्लासेस में खत्म करने का। तो अब तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि अब म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स तो अभी भी मुस्लिम्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आजकल के मॉडर्न एज लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न एज इन द सेंस जो ये ज़्यादा अर्बन कपल्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं। सो दैट ये भी याद रखना, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं कहानी सुना रही हूँ, ये सारी कहानी अब रेलेवेंट है। मोनोलॉग खत्म हो चुका है, अब रेलेवेंट पोर्शन चल रहा है। या आप लिखो स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट इनके लिए है, इफ 2 people or want to marry in an inter-religious or want to get into an inter-faith, inter-caste or inter-religious marriage, then they should adopt special marriage act. Or even if somebody is from the same religion, same caste, or you know whatever, even if they are eligible to get married under their own religious law, then also people can choose to decide to get married under special marriage act. तो या तो आपका इंटर-रिलीजियस शादी, हिंदू और मुस्लिम शादी कर रहे हैं, करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान, they decided to get married, so their marriage can only be registered under special marriage act. क्योंकि मुस्लिम लॉ में शादी करनी है तो दोनों को मुस्लिम बनना पड़ेगा, हिंदू लॉ में शादी करनी है तो दोनों को हिंदू बनना पड़ेगा। अगर दोनों को अपना रिलीजन कंटिन्यू करना है, गौरी खान एंड शाहरुख खान, ठीक है, अब इन लोगों ने जो कस्टम्स परफॉर्म करे वो भूल जाओ। कस्टम्स तो सोसाइटी के लिए होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखते हैं हम लॉ में, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लॉ में अगर मोर और लेस, वैसे तो मैं जानती नहीं कि करीना कपूर खान ने कौन से उसमें शादी करी एक्ट में, बट जहाँ तक आई कैन फोरसी इट, स्पेशल मैरिज एक्ट में करी होगी। जब इंटर रिलीजियस कपल होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, और अगर आप दोनों हिंदू हैं, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों क्रिश्चियन हैं, तो वो भी
आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हो। अब क्यों करते हैं, हिंदू एक्ट में क्यों नहीं करोगे, मुस्लिम एक्ट में क्यों नहीं करोगे, मैं बता देती हूँ क्यों। स्पेशल मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेना ज़्यादा आसान है, कम टाइम में जल्दी डाइवोर्स मिल सकता है, इजीली डाइवोर्स मिल सकता है, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स ज़्यादा है। ऑलराइट, ओके, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स ज़्यादा है। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स का क्या मतलब है, मैं अभी से बात इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सो दैट अपना माइंड खोल के चलना जब हम पूरा फैमिली लॉ पढ़ेंगे। ये मत क्वेश्चन करना कि ये तो अनफेयर है, ये कैसी रिस्ट्रिक्शन है, मुझे उस शादी में नहीं रहना। तो द पॉइंट इज, मैं अभी आंसर करती हूँ महक, 1 सेकेंड। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स होते हैं, आज आपका मन नहीं है आपके हस्बैंड के साथ रहने का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो सकते हैं। आपने शादी कर ली, इट इज अ परमानेंट थिंग, एंड हिंदू लॉ में इट इज बिलीव्ड दैट यू मैरिड नॉट देम, you haven't married them for this life, you've married that person for the next 7 lives as well, right? So you can't just get away with your marriage like that. So you will have to have a substantial ground, substantial cause, substantial reason why do you want to get away from this marriage. Now there could be many substantial reasons. So what did the law do? Basically they came up with a few grounds. I think Hindu law में 13 grounds है, and Muslim law में तो I think 7 या 8 ग्राउंड्स है। ये ग्राउंड्स अगर आपका मैरिज किसी भी एक ग्राउंड में फॉल करता है तो यू कैन देन go ahead and file for divorce. But apart from this, if your marriage does not fall in any of the grounds, then you cannot file for divorce. You will have to tolerate your spouse. Okay. Let me see your messages now before we start reading. After this, we will start reading the PDF. Okay. So taking up questions. Okay. Saloni, I will request Nishant to provide current affairs. Okay. Thank you for asking, Ovais. Mom is not fine as yet. All right. Thank you for asking, Mehek. Not well. All right. She's not well. Okay. So are they questionable? Are the laws questionable? No. The laws are not questionable. Okay. हाँ तो हाँ 1 सेकेंड, तो कोर्ट क्यों जाते हैं एंड रिलीजियस प्लेसेस ही चले जाएं, इसका मुझे मतलब बताओ महक। कोर्ट क्यों जाते हैं, कोर्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है तो फिर वो पंडित तो डाइवोर्स नहीं करा सकता, डाइवोर्स तो आपको ऑफिशियली लेना पड़ता है। ठीक है, वो भी मैं पूरा भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मैरिज रजिस्टर करवाना हर जगह कंपलसरी नहीं है, पर डाइवोर्स लेने के लिए हर जगह कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, और मैं समझाऊंगी कि ये ऐसे लॉज क्यों हैं। I will get into the practical aspect of it, so I think you will be better able to understand this. When will I take class for TOTS? I will, once I finish in these 3 days family law, then I will be taking classes for TOTS, and I will be taking combined classes like these for TOTS and every other subject as well. जहाँ जहाँ जिसका जो syllabus बचा है वो मैं करती जाऊंगी, and फिर I will say in the second half of the next week, I will do some extra portions of TOT, IPC and contract. Okay? Yes, ma'am, go ahead. And anybody else who also wanted to speak can speak up now. Ma'am, yes, go ahead. Wanted to ask that when people say that they are going for a court marriage, do they mean that they are going for a court marriage under the Special Marriage Act? No. Or like for court marriages, they can be of the same religion also. Like I have this doubt. Like, yes, okay. So to answer your question, firstly, 2 people of same religion, for example 2 Hindus, right? They can also marry under the Special Marriage Act. There is no compulsion कि आपको inter-religious couple होना पड़ेगा to get married under the Special Marriage Act. आप 2 हिंदू, 2 मुस्लिम, 2 क्रिश्चियन, कोई भी 2 लोग Special Marriage Act के अंदर शादी कर सकते हैं। 2 हिंदू सब क्यों शादी करेंगे Special Marriage Act के अंदर? हिंदू लॉ में क्यों नहीं शादी कर रहे हो आप? तो उसका सीधा सा जवाब ये है, टेकिंग डाइवोर्स इज ईजियर इन स्पेशल मैरिज एक्ट. दैट्स 1 पॉइंट. नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, कोर्ट जाते हैं तो फिर क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं? नहीं. कोर्ट मैरिजेस, कोर्ट रजिस्टर्ड मैरिजेस हर लॉ के अंदर होती हैं. सो उसमें ना एक्चुअली कोर्ट रजिस्टर्ड मैरिज जो होती नहीं है, वो मैं बताती हूँ क्या होता है. आर्य समाजी मंदिर में शादी करवा देते हैं किसी पंडित को पैसे देके जल्दी, और वहाँ से ब्राइड एंड ग्रूम को कोर्ट ले आते हैं, वहाँ पे उनसे डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं. तो वो हिंदू लॉ में ही शादी होती है. एंड जो बिल्कुल ही कोर्ट में शादी करते हैं सिर्फ पेपर्स पे साइन करके, जो आई बिलीव करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान ने कही थी, बिकॉज आई रिमेंबर उनके टाइम पे न्यूज़ आई थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको शादी करनी है तो आपको 3 महीने पहले कोर्ट से डेट लेनी पड़ती है. 3 महीने पहले
मतलब 3 महीने तक के स्लॉट्स फुल रहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इंडिया में. तो जो सिर्फ कोर्ट में पेपर साइन करके शादी कर लेते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां कम होती हैं, कोर्ट में भी वो आर्य समाजी मंदिर में शादी करके आने वाले ज्यादा होते हैं. क्लाइंट्स भी ऐसे ही मिलते हैं. जो आई थिंक निशांत हैड अ क्लाइंट अ फ्यू मंथ्स बैक, ही वाज नॉट इवन अ लॉयर बैक देन, पर उसने करवाई किसी की शादी और कोर्ट में ले गया और पेपर साइन करवा दिया. But on Hindu marriage rituals compulsory. So मैक्सिमम क्लाइंट्स वही मिलते हैं जो इसका फिल कर जाते हैं, अननो लेते हैं. सॉरी मतलब हिंदू लॉ में या मुस्लिम लॉ में शादी कर लेते हैं. बहुत बारी आपको नॉलेज कम है लोगों में इंडिया में अभी. ओके कंपलसरी. हाँ मंजुला, वील डिस्कस दैट आल्सो. ये रिचुअल्स का पोर्शन पे हम आएंगे. ये तो पूरा सेक्शन 7 है. लास्ट ईयर डीओएलएलयू में सेक्शन 7 पूछा गया था, जो कि आज मंजुला का क्वेश्चन भी है. सो दैट मींस एवरीबॉडीज mind is working. I am not aware about Tina Dabi's wedding. I will have to check her divorce records for that. Okay. Yes, Mehak, please go ahead. Yes, Rahul, Hindu marriage में कुछ ceremonies compulsory है. Yes, Mehak. Mehak, your voice is not coming to me. It's not clear. Go ahead again. Mehak, your voice is breaking. Are others able to hear Mehak clearly in yes or no in the chat box? Mehak, your voice is breaking for everyone. What about court marriage? Yes, it's clear. Yes, go ahead. नहीं, Mehak, voice is breaking. Mehak, you'll have to type this down. महक, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है. दोबारा बोलो या फिर चैट बॉक्स में लिख दो. मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए. मैं भी पीडीएफ खोलूँ, तब तक मैं वेट कर रही हूँ. आप आराम से टाइप करो. यस महक, ट्राई अगेन. गो अहेड. महक, मुझे तो अब वॉइस ही नहीं आ रही. मैं सुनूं क्या? बैंक बड़ी बैंक से जिसके भीतर धन उधार लेता है. Mehak, you'll have to type it down. I can't hear your voice. I cannot hear your voice only. The Supreme Court held that evidence can be recorded by the video application. ओके, इन द मीन टाइम किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी ने फैमिली लॉ में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ना समझ आया हो मैरिज पे? गो अहेड, आस्क मी नाउ. Ma'am, when we mention Hindu in the Hindu Act, there are six. There are different sects for for Hindus, right? Yes, correct. That's the first topic we discussed today. Yes, go ahead. Correct. Yeah. So, ma'am, also I read that there is the Anand Karaj Act for Sikhs. I knew it before, so I checked it, and yes, there was a formal act. So I just wanted to ask. So if there is a Sikh, like I'm a Sikh and I want to get married, so that act would be applicable to me, or the Hindu act would be applicable to me? Like, Okay, that's a very good question, and I was expecting you to ask me that. Delhi has a different act for Sikhs. So now, if you are in Delhi and you're a Sikh, then you are not considered a Hindu. You're considered a Sikh, and Sikhs are considered separate from Hindu in Delhi, because Delhi state, not Delhi is not a state, but Delhi Union Territory has a special legislation for Sikh. I believe Punjab also has one. I am not sure though, but I'm very sure for Delhi because I've studied it. I know that Sikhs have a separate act in Delhi. So your marriage and your registration of marriage goes under Sikhs Act. All right.
There's a Delhi Act for 6. Now let's talk about states like Telangana, Andhra Pradesh, where we will see that the population of 6 is not that much as compared to, let's say, Delhi or the Hindi speaking belt. Is that right? Like, let's compare it with North India. So over there, there are no acts, special acts for 6. There is no all India legislation, right? There are state specific legislations. Since there is no all India legislation, in that state will not split because you're a resident of. As a special legislation for 6, then obviously you will fall under the 6th Act. But in case, let's imagine there is no law for 6 in, let's say, Telangana, Madhya Pradesh, yeah, any state wherein the population is minimal. In that case, you will be falling under the Hindu law. Is that right? Because there is no all India legislation that exists. Okay. So, ma'am, like, it is necessary that both the people should be of, if they are from different states, then. So, okay, so if people are from different states, so yes, that's very much possible. People from Delhi and Mumbai getting married to each other, then what happens? So that depends where is your matrimonial home. Where do you want to get your marriage registered? For example, you are from Delhi, your husband is from Mumbai, your matrimonial home is in Mumbai. You go to Mumbai and you get your marriage registered there. So that if you get your marriage registered in Maharashtra, you will have to see if Maharashtra has a 6 Act. If it does not, you will have to make yourself fall under the Hindu Act. Is that right? Okay. So, ma'am, for before marrying, we have to see all these things like where to get, like where are more grounded. As someone who will become a lawyer in the future, or as someone who is interested in law, you should all check these things. And अभी marriage हमें ना अभी हम marriage पे focus कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग को marriage अभी अच्छा लग रहा है. मैं एक बारी प्रॉपर्टी के बारे में बातें बताऊंगी ना, तो प्रॉपर्टी ना फिर लगेगा शादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो प्रॉपर्टी है. और वो प्रॉपर्टी के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं कि आप कौन से स्टेट में हो, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कहाँ फॉल करती है और वहाँ क्या स्टेट का लेजिस्लेशन है. तो मैरिज तो छोटी चीज़ है क्योंकि मैरिज में क्या है, काफ़ी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है. दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपलसरी फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स. ये भी लिख लो, marriage in Delhi is to be registered compulsorily. So if you are married in Delhi and your matrimonial home is in Delhi and if your marriage is not registered, you cannot claim to be married. ऐसा नहीं है कि आप शादी प्रूव नहीं कर सकते. आप शादी का कार्ड, शादी की फोटो, शादी का वेन्यू का बुकिंग, एक्सेट्रा चीजें, डाउरी एक्सचेंज, ये सब दिखा के शादी प्रूव कर सकते हो कोर्ट में. बट प्राइमा फेसी कोर्ट नहीं मानेगा कि आप शादीशुदा हो if you do not have a registration certificate and if your marriage is Delhi. For example, in Uttar Pradesh, the registration of marriage is not compulsory. So there is no need to go to court after getting married. You're not married, you don't have to go to. If you're married, you don't have to go to court. For example, one of my cousins, she stays in Delhi. Her matrimonial home is in Delhi. They had a destination wedding in Mount Abu. Now Mount Abu is in Rajasthan. It's in Rajasthan. Rajasthan में marriage, getting marriage registered is. और बोला दिल्ली आ गए. अब दिल्ली में बैठे हैं, शादी रजिस्टर्ड नहीं है, कह रहे हैं हमारी तो माउंट आबू में हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी. बट आइडियली उन लोगों की गलती है. वो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का वोटर कार्ड है, दिल्ली का आधार कार्ड है, दिल्ली में रेजिडेंस है, तो आपको दिल्ली के होकर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. शादी रजिस्टर नहीं कराओगे तो कोर्ट मानेगा नहीं कि शादीशुदा हो. ऐसा नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते, लॉयर हायर करके प्रूव करवाना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ. प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट कोर्ट विल नॉट कंसिडर यू मैरिड, लीगली मैरिड, राइट. बट स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, स्टेट लाइक राजस्थान, जहाँ आज भी चाइल्ड मैरिज चलती है, वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज नॉट कंपलसरी. कोर्ट जाने की कोई जरूरत ही नहीं है. शादी करो, लड़ाई हो तो कोर्ट जाओ, लड़ाई नहीं हुई तो पूरी जिंदगी कट जाएगी ऐसे. ठीक है, गो अहेड महक, योर टर्न. Am I audible now? I hope I am. यस यस, गो अहेड. Okay. So my question is कि आपने जो बताया स्पेशल मैरिज एक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कितना डिफरेंट है? मतलब इनके क्या बीच में डिफरेंसेस होते हैं? Contract marriage is no marriage in India. Contract marriages are basically Muslim marriages. All right, Muslims में marriage को contract माना गया.
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट माना गया है कि एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, तभी वो कबूल है बोलते हैं, करेक्ट। सबने मूवीज में तो देखा ही होगा, कबूल है बोल रहे हैं, तो वो मुस्लिम्स में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। जिसको आप बोल रहे हो ना, वो होता है प्रीनप, जो वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं प्रीनप। शादी करा है, प्री नुप्शियल बॉन्ड साइन करा है हम लोगों ने शादी से पहले कि हमारा डाइवोर्स हुआ तो हम प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी वाइफ ले गई एज एलिमनी, या वाइफ अर्निंग ज्यादा थी, हस्बैंड कम कमाता था, तो हस्बैंड ने मेंटेनेंस मांग ली वाइफ से। तो वो सारी चीजें हम शादी से पहले डिसाइड करके रखते हैं। सो माई सिबलिंग, माई ओन रियल ब्रदर, ही इज 30, so we are looking for a matrimonial match for him right now, right? You know, abhi to my mother is sick, but like we are in the process of looking for a matrimonial match. So you know, he was like telling me ki I want to sign a prenup. So I told him prenups are not valid in India. There is no concept of prenups being valid in India, because in India now, Mehak, the correct answer or the exact answer to your question is, marriages in India are not contracts, they are sacred, they are sacrosanct. Remember, I have taught this word to all of you, sacrosanct. Marriages in Hindus are sacrosanct. Marriages in Christians is also sacrosanct. Sacrosanct meaning they are sacred, they are pious. You cannot call it a contract. And that is why, since we are Hindus, I am a Hindu for that matter, like, even if I don't want to call myself Hindu, unfortunately the law categorizes me into being a Hindu, right? हमारे इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे जैसे हम पीडीएफ शुरू करेंगे। अगर आपका कोई रिलीजन नहीं पता है, आप ऑर्फन हो, आपको एक ऑर्फनेज ने पाला है और आप किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपको हिंदू अज्यूम कर लिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलना शुरू कर देती हूँ आई डोंट हैव अ रिलीजन, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिलीजन क्या हो गया इंडिया में? हिंदू। तो मैं हिंदू लॉ में फॉल करूंगी, तो मेरा भाई भी हिंदू लॉ में फॉल करता है, तो वो उसके लिए प्रीनप कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसका प्रीनप वैलिड ही नहीं माना जाएगा। अगर आपने साइन कर भी लिया, लेट्स से आपने एफिडेविट बनाया, आपने साइन कर लिया, आपने भी कर लिया, आपकी वाइफ ने भी कर लिया, या हस्बैंड ने भी कर लिया, तो भी वो वैलिड है ही नहीं। कोर्ट में भी जाओगे, कोर्ट नलिफाई कर देगा, बोलेगा भागो यहाँ से, क्या बकवास। बट ये सब लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, लाइक आपको वो कुछ देते हैं पेपर्स, आप साइन करते हो, और वो साइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है महक, कि मैं अपने पूरे सेंसेस में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, और मेरे पे शादी का कोई प्रेशर नहीं बनाया गया था, मैं खुशी खुशी अपनी कॉन्शियस में रह के अपनी विल से शादी करके आई हूँ। तो लीगली आप लोग अनमैरिड ही हो, मतलब नहीं, समझो, पर्सनल लॉज हैं ये, हर रिलीजन में डिफरेंट है। क्रिश्चियन में कुछ और होगा, क्रिश्चियन का तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पढ़ाते ही नहीं है क्रिश्चियन का। मुस्लिम और हिंदूज का मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो आपकी भी सिलेबस में हो, मेरी भी सिलेबस में था, मैंने भी पढ़ा है। अब हिंदू में क्या होता है, हिंदू में अगर आपने सेरेमनीज कंप्लीट कर ली, जो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो हम आज करेंगे उसमें लिखी हुई है, जो लास्ट ईयर DOLLB के पेपर में पूछा गया था, एसेंशियल्स ऑफ अ मैरिज कहते हैं उसे, वो अगर आपने परफॉर्म करी है तो आप शादीशुदा हो। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता आपको कि आप शादीशुदा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ स्टेट्स में जैसे कि मैंने अभी बताया, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो अगर आपने 7 फेरे ले लिए, सेरेमनीज कंप्लीट कर ली एज अ हिंदू, तो आपको कोर्ट में जाके साइन भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे कि मैं शादीशुदा हूँ, प्रूफ, सर्टिफिकेशन। तो कोर्ट नोट कर लेगा कि लेट्स से महक एज दिस, डॉटर ऑफ दिस, रेजिडेंट of this place is now legally married to XYZ, aged this, resident of this, son of this, all right? So ये सब registration है। Otherwise सिर्फ ceremonies perform करना है, let's say राजस्थान, let's say पंजाब, let's say उत्तर प्रदेश, हरियाणा, शफ है, कोई जरूरत नहीं है कोर्ट जाकर रजिस्ट्रेशन लेने की, लोगे तो बस जबरदस्ती लॉयर को पैसे दे आओगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो नेसेसरी नहीं है सर्टिफिकेट, दिल्ली में सर्टिफिकेट कंपलसरी है 2012 के बाद से। हाँ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये आई डोंट नो ये वैलिड है नहीं, बट हम सबने एक धर्मेंद्र की स्टोरी सुनी है, वो हिंदू थे, उन्होंने शादी की थी, एंड देन अगेन उन्होंने इस्लामिक धर्म ले लिया था, एंड देन उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो उनकी जो दूसरी शादी है वो वैलिड होगी? लाइक पहले तो हिंदू थे, इट्स इनवैलिड, तो उनके लाइक जो अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो फिर लीगल होते हैं, या उनको नहीं, मतलब कोई राइट्स वगैरह नहीं देते? ये सारा कुछ, हाँ, ये भी हम पढ़ेंगे गार्डियनशिप में, और हम ये पढ़ेंगे अभी आज। इसका आंसर मैं आपको दूंगी व्हाइल आई एक्सप्लेन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको तब समझाऊंगी। ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना, मैं इसको अपने आप ही टच करूंगी इन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट।
लेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं ना इनको. हाँ, इलेजिटिमेट या फिर लेजिटिमेट. या फिर लॉ में पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक और वर्ड यूज होता था जो अब एक अब्यूजिव वर्ड है, व्हिच इज बास्टर्ड. So these kids were called as bastards. ये लॉ में वर्ड था. आई थिंक अभी भी ब्रिटिश में यूज होता होगा, तो आई एम नॉट अवेयर. बट इंडिया ने तो ब्रिटिश लैंग्वेज के 2-3 वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, जैसे कि बास्टर्ड और एक और कौन, पॉपर. तो ये 2-3 वर्ड्स चेंज कर दिए हैं. पॉपर का मतलब होता है जो ब्रिटिशर्स बोलते थे भिखारियों को पॉपर. तो अब हमारे कंट्री में ये पॉपर वॉपर वर्ड नहीं चलता है. हमारे यहाँ पे वो चलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड या ऐसे वर्ड्स चलते हैं. ठीक है, ऑलराइट. बट यूर करेक्ट, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं. ओके, हाँ, मैं दया भागा एंड मिताक्षरा के बारे में बताऊंगी. ऑलराइट, ओके. अब हम एक बारी प्लीज शुरू करें. तो मैं हिंदू लॉ से शुरू कर रही हूँ अभी. हिंदू लॉ में एज I have told you, there are sources. All right, sources are what? Customs, traditions, usage. कोई चीज चलती चली आ रही है हमारी ट्रेडिशंस में, हिंदूज के ट्रेडिशंस में, तो हम उसको ऑटोमेटिकली लॉ बना देंगे या समझ लेंगे. ठीक है, अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कस्टम लॉ है और कौन सा कस्टम लॉ नहीं है? इतने सारे कस्टम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर के टाइम तक एक कस्टम होता था, बताती हूँ, सही में होता है, आई एम अ सिंधी. तो हमारे उसमें क्या होता है कि लेडीज का यानी वाइफ्स का पूरा नाम बदल देते हैं शादी के बाद. तो मेरी मदर का फर्स्ट सरनेम तो देखो सारे हिंदूज में चेंज होता है. मेरी मदर का फर्स्ट नेम भी चेंज हुआ. मेरी दादी का भी हुआ था, मेरी नानी का भी हुआ था, माजी, बुआ, जितने रिश्तेदार है सबका हुआ था. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम देयर, सो आई have made up my mind already, like I've made it before even studying law, that I will not change my first name. I feel my first name Ravi. In fact, I'm not going to change my last name also. That is also for sure. But इन जनरल, जैसे मेरी मम्मी ने तो पूरा नाम बदल लिया, फर्स्ट एंड सेकंड नेम दोनों बदल लिया, सरनेम भी बदल लिया, पहला नाम भी बदल लिया, पूरा नाम चेंज हो गया मम्मा का. अब मुझसे कोई पूछता है तुम बदलोगी नाम, तो ऐसे नो. अब मैं ये कस्टम तोड़ रही हूँ, तो क्या ये इलीगल काम है? क्योंकि ये कस्टम्स तो चले आ रहे हैं सदियों से. मैं जहाँ तक अपनी फैमिली हिस्ट्री ट्रेस कर सकती हूँ तब से ये आ रहा है. तो ये कैसे पता चलेगा? ये गुरनिश आपने नो बोला, चलो आप बताओ, व्हाट इज द पैरामीटर टू डिसाइड कि ये कस्टम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये कस्टम इंपॉर्टेंट नहीं. एज सिंपल एज दैट. Ma'am, I mean, it's my personal belief that the customs which are the basic ones, like नाम change करने Who से. decides what is basic and what is not basic? सिंधियों में शादी में बैठे बैठे नामकरण होता है. मतलब while you're sitting on that वेदी जो हिंदूज में लगती है, वहाँ बैठे बैठे अल्फाबेट निकलते हैं और नाम बदला जाता है. 6 में भी गुरनिश, एज आई नो, शादी के बाद नाम वो लोग No. अल्फाबेट निकालते हैं. No, अल्फाबेट नहीं निकालते, अल्फाबेट उसको देख के no. मैम नाम नहीं चेंज करते हैं, बट एक्चुअली हम लोग में ये भी ट्रेडिशन है कि हमें तो अपना बाय हमारे में जैसे आई हैव बिंद्रा एज माय लास्ट नेम, आई शुड नॉट इवन यूज दैट बिकॉज द रिलीजन सेज दैट वी आर अबव कास्टिज्म, सो my caste is Bindra, so I should not even use that also. Right. So who decides what is the parameter? Now to answer my own question, who decides the parameter? The law. How does the law determine कि ये वाला अच्छा नहीं है custom, इसको हटा देते हैं, ये रख लेते हैं. Now it depends upon certain factors. Let me take name of a few factors. First is time. Since how long has it been used? Second, all right, how important it is and what kind of a difference is it making? All right, and third, it's usage. What do we mean by usage? That how often and what is the level of usage? How many people are changing their names? How many girls in India are, or women in India after marriage are changing their entire name? The court will assess that, or let's say the legislature will assess these factors कि कब से नाम बदलते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रथा भी नई नई शुरू हुई है, ठीक है, सडनली हिंदूज ने बोला ये हमारी रिलीजन है, सारे हिंदूज ने कलेक्टिव डिसीजन लिया ये हमारा आज से ट्रेडिशन है, तो क्या वो ट्रेडिशन बन जाएगा लॉ के हिसाब से? नहीं. टाइम इमेमोरियल से यूज होना चाहिए, वो पहला कंडीशन. दूसरा पैरामीटर टू जज, अगर वो अभी नया नया कस्टम बना तो हमसे कस्टम नहीं मानते, वो पहले से चलता आना चाहिए, क्योंकि ये सारी रिलीजन की बात है और हम रिलीजन नहीं बनाते, रिलीजन हमें बना हुआ मिलता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, यूजेज. 10 लोग चेंज कर रहे हैं या 10 करोड़ लोग नाम चेंज कर रहे हैं? अगर तो 10 करोड़ लोग वो चीज मानते हैं तो आपको भी माननी पड़ेगी, तो फिर वो इम्पोर्टेंट कस्टम है. अगर सिर्फ 10 लोग, सिर्फ सिंधी की पॉपुलेशन ही क्या है इंडिया में, सिंध तो पाकिस्तान में रह गया, ठीक है, पार्टीशन के बाद सारे सिंधी जितने बच्चे थे पार्टीशन के बाद वो यहाँ आ गए,
3.5 लाख की पॉपुलेशन नहीं है हमारे कंट्री में सिंधीज की, तो वो भी सारी स्प्रेड आउट है, कोई स्टेट नहीं है। सिंध इतना बड़ा स्टेट था, इंडिया में कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो यूजेज क्या है, डिमिनिश होती चली गई, सारे सिंधीज भी नहीं करते। तो ठीक है भाई, मैं सिंधी हूँ, मेरे को नाम नहीं बदलना, कोई ये इलीगल या इनवैलिड नहीं है। तो ये हमें क्या समझाता है ये सब कुछ, कि हिंदू लॉ का सोर्स क्या है, हिंदू रिलीजन। रिलीजन हमें कहाँ से पता चलता है, स्मृति एंड श्रुति, मेन सोर्सेस, ठीक है। स्मृति श्रुति का क्या मतलब है, मनुस्मृति एक बुक लिखी गई थी 2nd सेंचुरी में, बहुत ही ज्यादा अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑर्थोडॉक्स एंड सेक्सिस्ट बुक है। काफी अच्छी बातें भी लिखी हैं, बट बहुत ज्यादा बुरी बातें भी लिखी हैं, और सारी बातें अडॉप्ट करके हिंदू लॉ बना है। अब हिंदूज क्योंकि अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइडेड है हम लोग बहुत ज्यादा, तो इस वजह से देयर आर 2 schools of Hinduism. First is Mitakshara and the other is Dayabhaga. Now in Mitakshara, what is Mitakshara and what is Dayabhaga? We'll keep it for let's say the 3rd class. जब मैं एकदम लास्ट के कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एम कर रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेक्शंस एम कर रहे हैं। दयाभागा एंड मिताक्षरा, मिताक्षरा पूरे इंडिया में यूज होता है, दयाभागा यूज होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड कुछ वेस्ट बंगाल स्टेट्स run under the Dayabhaga school of law. However, rest of India is under Mitakshara school of law. Hindus की बात हो रही है, हमने हिंदू लॉ से शुरू किया है, then we'll come to Muslim law as well. And Muslim law is equally interesting but a little tough. Why is it tough? Uwais for that matter will not find it tough because there are terms. All right, हिंदू लॉ में ना terms कम used है, terms कम used इसलिए है हिंदू लॉ में क्योंकि एक फर्स्ट थिंग, हिंदू लॉ के जो टर्म्स है ना वो सारी बॉलीवुड मूवीज बहुत रेपिटेटिवली यूज करती हैं, तो सबको पता चल जाते हैं। हमारा सोशल मीडिया, पॉपुलरिस्ट मीडिया बहुत ज़्यादा यूजेज में करता है वो, और सारे हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड्स इंग्लिश में ट्रांसलेट होके लिखे हुए हैं हमारे एक्ट में। बट क्योंकि मुस्लिम्स में मैरिज एक्ट नहीं है, सिर्फ डाइवोर्स एक्ट है, तो वो मैरिज के टर्म्स ना सीधा कुरान से पिकअप होते हैं, होली बुक से पिकअप होते हैं, तो वो अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए वो वर्ड्स थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। अब वो उर्दू अरबिक मिक्सचर वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स उर्दू में आ गए हैं इंडिया की वजह से, कुछ वर्ड्स अभी भी अरबिक में हैं, तो वो वर्ड्स थोड़े टफ हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन हिंदू लॉ हैव बीन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इन सम वे और द अदर, and you will see that in laws also. So Muslim law most probably हम कल तक ही touch कर पाएंगे looking at the time now. So let's quickly start with the Hindu law first, and once we are done with Hindu law, then Muslim law will take less time. Why will Muslim law take little less time? That is because concepts आपके clear होंगे, कुछ difference के साथ आप realize करोगे Muslim law similar है, मतलब कुछ difference है, minor differences, and then there is Muslim law. Concepts will be the same, grounding is going to be the same. All right, okay, your rationality should remain the same while judging both the laws. All right, both the laws, I will say all personal laws in India are unfair, not discriminatory. So don't ask me question why are they discriminatory, because personal laws are not laws according to article 13. So if they are not laws according to article 13, so that is why they are not consistent with fundamental rights. If something is not consistent with fundamental rights, obviously they are going to be discriminatory, derogatory, and everything that you can think of. Okay. Yes, law is very, very biased. Marriage void, valid, voidable हम discuss करेंगे. And Mitakshara, Dayabhaga I have explained in a little. Mitakshara, as I said, these are Mitakshara and Dayabhaga are 2 schools of law. किसी को spelling ना पता हो तो ओवैस ने लिखी है messages पे Mitakshara and Dayabhaga. Mitakshara is followed in most parts of the India, and Dayabhaga is restricted majorly to, you will also find a few Dayabhaga people in the western side of our country, Gujarat and, but most of them are concentrated in West Bengal and northeastern states. Okay. Let me quickly start with the PDF. Open up your PDFs please, quickly. So we are beginning with Hindu Marriage Act. We'll start understanding a few other points that I have to start with introduction. We'll keep it for the 3rd class. वो सारे technical points हैं. Technical points come after our concept. Okay. Fix it to take up good amount of syllabus today. Okay. Now, the first section is section 2. ये देखो जो ये numbers है ना, ये numbers order में नहीं है. ये bullet points numbers जो हैं, ये numbers as bullets नहीं है.
ये नंबर्स एज नंबर सेक्शन का नंबर है। ये सेक्शन 2 से हम शुरू कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। 1955 का एक्ट है, अमेंडमेंट होते रहते हैं ऑलमोस्ट हर 2 से 3 साल इररिस्पेक्टिव। 1955 का एक्ट है। सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन का मतलब है, सेकंड सेक्शन इन शॉर्ट डिफाइंस हु इज अ हिंदू। सेकंड सेक्शन डिफाइंस हु इज अ हिंदू। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, इट रीड्स एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट मतलब हिंदू मैरिज एक्ट है, तो किसकी मैरिज इस पे अप्लाई होगा? हिंदू की। तो पहला क्वेश्चन तो ये है हिंदू क्या है, हिंदू है कौन, कौन होता है हिंदू। और दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैरिज क्या होती है, तभी तो हिंदू मैरिज एक्ट है। पहले तो ये 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तभी तो बताओगे कि उनकी शादी कैसे करोगे। पहले तो ये बताओ हिंदू कौन होता है, हिंदू कौन है, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है? हिंदूज पे। मुस्लिम्स का हो तो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, राइट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होता, बट ये किसका एक्ट है? हिंदू का। तो पहले बताना चाहिए हिंदू कौन है, ये एक्ट अप्लाई किस पर होता है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज टू any person who is a Hindu by religion in any of its form or developments, including Lingayat, Virashavya, Brahma, Pradna, Arya Samaj. To be honest, I am a Hindu, so called Hindu. मुझे तो पता भी नहीं मैं ब्रह्मा हूँ, प्रार्थना हूँ या आर्य समाजी हूँ या विराशव्य हूँ या लिंगायत हूँ, ठीक है। बट अगर आप इन सब में से भी कोई है तो भी आपको हिंदू माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इस बार एक्सपेक्ट करती हूँ DOLLB में। जो लास्ट ईयर अगर मुताबली पूछा था तो इस साल ये भी पूछना चाहिए, करेक्ट। ये सिमिलर बेसिक्स हैं, मुस्लिम लॉ का वो बेसिक था, ये हिंदू लॉ का बेसिक है कि who is a Hindu, is Jain considered a Hindu, is Buddhist considered a Hindu, is Sikh considered a Hindu। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया बुद्धिस्ट की शादी, तो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट नहीं है। बुद्धिस्ट को इंडिया में हिंदू माना गया है और सारे बुद्धिस्ट, जैन्स एज वेल एज सिख्स पे हिंदू लॉज अप्लाई। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू चाइल्ड अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एंड whatever एक्ट, हिंदू लॉज अप्लाई टू Buddhist, Jains and Sikhs in India. As I said, Delhi has a special act for Sikhs, not all states. So there's no all India act for Sikhs. Delhi has a special act. So अगर कोई दिल्ली का सिख है तो फिर वो हिंदू में एक्ट में ना आके सिख एक्ट में जाता है। But in general, the general principle is, if you are a Buddhist, Jain or Sikh, you're considered a Hindu in our country, at least for the purposes of law. Okay. C point. To any other person domiciled in territories to which this act extends who is not a Muslim। अच्छा, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है डेफिनेशन का। हिंदू कौन कौन है? जो हिंदू है वो तो हिंदू है ही, जो फर्स्ट पॉइंट है। टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, वो तो हिंदू एक्ट में फॉल करेगा ही करेगा। सेकंड है, इफ यू आर बुद्धिस्ट, जैन, देन आल्सो यू आर अ हिंदू। बुद्धिस्ट, जैन और सिख, देन आल्सो यू आर अ हिंदू। नाउ थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, देन ऑल्सो यू आर अ हिंदू। तो फॉर एग्जाम्पल आपका रिलीजन हमें नहीं पता है, आपको भी आपका रिलीजन नहीं पता, आपके पेरेंट्स का हमें पता ही नहीं है, तो हमें फॉर एग्जाम्पल समवन इज एन ऑर्फन, ना उसके पेरेंट्स का पता है ना उसका पता है उसका रिलीजन क्या है, तो यानी वो ना वो मुस्लिम हुआ, ना वो क्रिश्चियन हुआ, ना वो पारसी हुआ, ना वो ज्यू हुआ, तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं वो हिंदू है। तो जिसका कोई धर्म नहीं वो हिंदू। जो हिंदू है वो हिंदू है, जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है वो भी हिंदू है, और जो कोई नहीं है वो भी हिंदू है, ठीक है। Okay, fine. All right. उतना ही पोर्शन उसका रेलेवेंट है, बाकी पार्ट इग्नोर भी कर सकते हो। अच्छा, एक मैं पॉइंट अभी क्लियर कर देती हूँ। इंदिरा गांधी के साथ हुआ था ये। इंदिरा गांधी, सबको पता है who did Indira Gandhi get married to? Anyone who knows the answer to this general knowledge question? Who did Indira Gandhi Yes, get married to? Ma'am. Sorry. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, She go was on. married to a Muslim, and with Gandhiji adopted that Muslim guy, so that's why. No, Gandhiji did not adopt him. He just kept his name as Gandhi. So correct. He was married to a Parsi or a Muslim man. That is debatable. According to your political lineage, आप बता सकते हैं कि उनकी शादी किससे हुई थी, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि इंदिरा गांधी did not marry a Hindu.